students, welcome to my channel. Plug. This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing weeds and turning the soil. This is made of wood and it is drawn by a pair of bullocks or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip. Is called a plug shaft. प्लग शाफ्ट का मतलब होता है हल्का दास्ता, जिससे आप कह सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे फिगर 1.1 में देखा होगा, बुलक कार्ड के ऊपर कैसे उन्होंने रखा हुआ है, जो चीज़ वुड की होती है उसे कहते हैं हम लोग प्लग शाफ्ट. देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. द अदर हैंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम which is placed on the bulk necks. One pair of bulk and a man can easily operate the bulk hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong board and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल. अब आप यहाँ देख सकते हो फिगर 1.1 बी में अहोई कैसा होता है. लाइक इट इज़ अ टूल जिससे आप मिट्टी को बहुत लूजिंग बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, एंड उसके अंदर जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स की चीज़ें होती हैं वो सब निकल जाती हैं, एंड वो एनिमल्स के बेंट पे रखते हैं पीछे बैक साइड में, एंड उसको पुश करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से उसमें ब्लेड वगैरह चीज़ें होती हैं जिससे वो सॉइल को बहुत लूज़ बना देते हैं. Cultivator. Nowadays, plugging is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator save labor and time. Nowadays, we are what using cultivator. पहले के टाइम पे हम लोग एंशिएंट के टाइम पे हम लोग प्लगिंग ये सब बुलक कार्ड का हम यूज़ करते थे हम लोग, बट नाउ डेज हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर, एंड इट इज़ यूज फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड इट इज़ ऑल्सो सेव लेबर एंड टाइम. 1.4 Sowing. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which is high yield. It means हम लोग sowing का मतलब होता है बोना, जो हम लोग क्रॉप्स के बीज जो होते हैं उससे हम बोते हैं, राइट, सॉइल के अंदर, एंड हम जो बीज लेते हैं वो बहुत अच्छे गुड क्वालिटी और क्लीन होने चाहिए और बिल्कुल हेल्दी सीड्स होने चाहिए ताकि हमारी फसल बहुत अच्छी हो. गॉट इट. One day I saw my mother put some gram seed in the vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started on float on top. I wondered why some seeds float on water. Activity 1.1. Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. Are there seeds which float on water? Could those be lighter or heavier than those which sink? Why could they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore they float on the water. अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, घर के अंदर अपने कुछ सीड्स वगैरह ले लीजिए और एक बास्केट में या फिर एक बाल्टी में आप उसको वाटर के साथ उसे पुट कर दीजिए, एंड जो डैमेज सीड्स होंगी वो बहुत लाइट हो जाएंगी एंड अप पोर्शन पे आ जाएंगे, सरफेस वाटर के आ जाएंगे, एंड जो नीचे रहेंगी वो हेल्दी सीड्स होंगी आपकी. This is a good method for preparation good healthy seeds from the damaged one. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tool used for sowing seed. Before sowing, अगर आप अच्छे से कोई भी सीड्स को आप इसको टास्क है ये आपका एक टूल की तरह अच्छे से बिल्कुल भिगो कर पानी में रखिए, एंड देन जो हेल्दी सीड्स होंगे दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कल्टिवेटिंग. Traditional tool. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. Figure 1.2a. You can see here बुलक कार्ड से कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड से वो लोग क्या कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं. आप देखिए दो पीछे आदमी खड़े हैं, हाउ दे आर डूइंग इट. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फर्नल, passes down through 2 or 3 pipe having sharp ends. This end passes into the soil and place their seeds. ये क्या होता है, इससे सीड्स जो होती हैं वो प्रॉपर प्लेस पे क्या हो जाती है, प्लेस्ड हो जाती हैं, एंड द सीड्स अपना प्लेस लेकर देन दे वो ग्रो अप. सीड ड्रिल.
Nowadays, the seed drill figure 1.2b is used for sowing with the help of tractor. ये जो फिगर 1.2b में आप देख सकते हो, सी को कैसे सीड्स को उन्होंने ड्रिल किया हुआ है. Nowadays, we are using tractor for it. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. ये काम क्या काम करता है, जो सीड्स होते हैं उसे बिल्कुल यूनिफॉर्मली, बिल्कुल एक लेवल में, इक्वल डिस्टेंस में वो डेप्थ अंदर तक सीड्स सॉइल के पहुंचा देता है. इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. वो ये बात का ध्यान रखता है जो ड्रिल मशीन होती है कि जो हमारे सीड्स हैं उसे अच्छी तरह से हम लोग सॉइल के अंदर सोइंग कर दें, बिकॉज अगर उन्होंने बर्ड ने खा लिया तो वो ख़राब हो जाएंगे. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड. क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को कंज्यूम करती हैं. Sowing is by drilling seeds the drill save the time and labor. जो sowing होता है इस चीज़ से, ड्रिल मशीन से, वो टाइम एंड लेबर का सेव करता है. There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grown into the seed lining, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. Appropriated distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. ऐसा भी हो जाता है कभी कभी एक ही पॉट में हम लोग, तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग प्लांटिंग वगैरह करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर क्राउडेड हो जाता है, तो वी हैव टू रिमूव इट. हमारे जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हमारे पॉट के अंदर आ जाते हैं, या फिर फील्ड में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें सब एक्स्ट्रा चीज़ों को हम लोग को रिमूव करना पड़ता है. एंड टाइम टाइम हमें देखना होता है कि प्रॉपर सनलाइट मिले, न्यूट्रिशंस मिले एंड वाटर मिले फ्रॉम द सॉइल. मतलब सॉइल को हमारी सब चीज़ें मिलेंगे तो ही हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी फील्ड या हमारे प्लांट्स वगैरह आप घर पे देखते होंगे अपने. तो अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर रहेंगी देन ओनली इट विल वर्क. नाउ 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. व्हाट इज़ मैन्योर स्टूडेंट? मैन्योर का मतलब होता है खाद, जो हम मिलाते हैं सॉइल के अंदर. एंड फर्टिलाइज़र वो चीज़ें होती हैं जिससे आपकी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स बोल सकते हो, या फिर जो स्मॉल जर्म्स होते हैं, कीड़े वगैरह जो होते हैं, वो सब चीज़ें हमें डिस्ट्रॉय करनी होती हैं, नहीं तो वो प्लांट को ख़राब कर देते हैं, हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं. तो वी हैव टू एड इट. A substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. जो चीज़ें हमारे सॉइल को न्यूट्रिशन देती हैं और हेल्दी ग्रो करती हैं, वो चीज़ों को हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं. I saw healthy crop growing in the farm. In the neighboring farm, the plant were weak. Why do some plants grow better than others? यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है कि मैंने कुछ हेल्दी क्रॉप्स को देखा इन द फार्म, अपने फार्म में, और जो नेबर का जो फार्म था वहाँ पे जो प्लांट्स से बहुत वीक थे. ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स इतने अच्छे होते हैं और कुछ प्लांट्स वीक, और या फिर बोल सकते हो कमज़ोर, या फिर ख़राब हो जाते हैं वो. सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. सॉइल क्या करता है? मिनरल्स देता है प्लांट्स को. बहुत सारे जितने भी हमारे फर्टिलाइजर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जो हम लोग लूजिंग करते हैं सॉइल को, सब चीज़ें ड्रेन करते हैं. दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये न्यूट्रिशन जो होते हैं बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए. इन सर्टन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कहीं कहीं पर ऐसा होता है सर्टन एरिया में कि क्रॉप्स फार्मर ग्रो करता है, फिर कुछ दिनों बाद वापस से उसी जगह पे सेम क्रॉप्स को वो लोग ग्रो करते हैं. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrition. कभी भी फील्ड को वो लोग अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते, कल्टीवेशन करते रहते हैं, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, बंजर ज़मीन बन जाएगी. अगर हम उसे कल्टीवेट नहीं करेंगे, हम उसको फार्मर उसे उस ज़मीन के टुकड़े को या फील्ड को ऐसा नहीं छोड़ सकते. वॉट विल हैपन? इमेजिन अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा सॉइल के अंदर तो क्या होगा? डेफिनेटली आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे. कंटिन्यूस कल्टिवेटिव ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट. अगर हम एक ही क्रॉप्स को कल्टिवेट करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तभी भी सॉइल की जो न्यूट्रिशंस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो पुअर हो जाएंगे.
Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इसलिए बार बार फार्मर को खाद मिलानी पड़ती है फील्ड के अंदर, सॉइल के अंदर, ताकि उसका जो न्यूट्रिशंस है वो ख़त्म नहीं हो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. अगर प्रॉपर सफिशिएंट मैन्यूरिंग नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा, तो डेफिनेटली आपके प्लांट्स होंगे वो वीक हो जाएंगे. मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्टेज. मैन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, वो आपके प्लांट्स डिकम्पोज हो जाते हैं और एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है वो भी डिकम्पोज होता है, तब जाके वो मैन्योर बनता है. फार्मर डम्प्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. फार्मर क्या करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो पीट्स वेस्टेज होते हैं उसे वो ओपन प्लेस पे जाके डाल देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो सके. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ऐड होते ही वो डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है. द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. ये जो होता है डिकम्पोजिशन वो एक मैन्योर है, वो एक ऑर्गेनिक है. We have already learned about vermicelli composition in class 6 standard. आपने पढ़ा होगा कि कैसे मैन्योर बनता है in class 6. Better growth of plant in which class was the growth fastest. Fertilizer are chemically which are rich in the particular nutrients. How are they different from manure? Fertilizer are produced in factory. Some example of fertilizer: urea, ammonium sulfate, sulfur phosphate, potash, P and K means nitrogen, sulfur and potassium, phosphorus. The uses of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. अगर हम फर्टिलाइज़र क्या चीज़ है डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. फर्टिलाइज़र जो होता है वो आपके केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, और केमिकल्स के नाम यहाँ मैंने आपको बताए हुए हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे हुए हैं आपके. एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फार्मर फॉर बेटर यील्ड. अच्छे क्रॉप्स के लिए लाइक वीट है, पैडी है या मेज़ है, इन सब चीज़ों के लिए फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर दोगे तो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो लेस फर्टाइल हो जाएंगे, मतलब आपके सॉइल में से न्यूट्रिशन चले जाएंगे. फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉपुलेशन. बिकॉज ऑफ ये फर्टिलाइज़र की वजह से क्या होने लगता है, वाटर पॉल्यूशन भी बहुत होता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स. लाइक यहाँ पे फार्मर क्या करता है, अगर आप फर्टिलाइज़र करता रहेगा बार बार एक ही जगह पे वो फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी. इसलिए कहा गया है कि जितना हो सके ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र. और फार्मर अपना एक जैसे क्रॉप उसने कल्टीवेट किया, फिर वो कुछ टाइम का गैप करके अनकल्टिवेटेड फील्ड को छोड़ देता है एंड देन अगर सेकेंड क्रॉप बाद में कुछ टाइम बाद वो स्टार्ट करता है. द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. सेकेंड मेथड होता है चेंजेस लाने का, क्रॉप्स रोटेशन होता है फील्ड के अंदर. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली. ऐसे फॉर एग्जांपल आपने एक क्रॉप्स को ग्रो किया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने अनदर क्रॉप को ग्रो किया वही सेम फील्ड पे. अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेगम्स एसफोर्डेड इन वन सीजन एंड वेट इन द नेक्स्ट सीजन. पहले के नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स जो थे वो पहले एक सीज़न में डिफरेंट क्रॉप, सेकेंड सीजन में डिफरेंट क्रॉप को वो लोग प्रोड्यूस करते थे. This helped in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous classes, you have learned about Rhizobium bacteria के बारे में. These are present in the modules. These are present in the nodule of root of leguminous plants.
They fix atmospheric nitrogen. Here they have written some distinguish of fertilizer and manure. Table 1.1 given the difference between a fertilizer and manure. Advantage of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous due to the which exchange of gas become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil.